Hello students, welcome to our YouTube channel, Swarup Gorai. Okay, your academic counselor. Today we are going to discuss the topic complex numbers and De-Moivers theorem. It carries a total of 10 marks, 10 to 15 marks in your exam. This is also one of the most important topics. We should go through this. After this topic, we will be coming with one video lecture that is vectors and 3D. That is also very important. So, okay, let's start with the complex number. What is a complex number? ठीक है तो what is the representation of complex number, all these things we are going to discuss over here. Okay, and actually I was so late in presenting this lecture, live lecture, because I was not well, so I couldn't come up with the lecture. So today hopefully I'm fine and I have come up with the lecture, and your madam is not fine, that's why the lecture has been cancelled. So let's start. Okay, a complex number is always represented in the form a plus ib. Okay, it is represented as z equal to a plus ib. Okay, and this one is the real part and this part is the imaginary part. Where I is involved, that is imaginary. Hope it is clear. Okay, so this is the actual representation of complex number a plus ib. Okay, now you want to ask what is the value of I. The value of I is I square equal to minus 1. Always the value is this. Okay, so I equal to how much, or I equal to root over minus 1. This is the value. Okay, now you understood that this is the form. Okay, now if we want to find the conjugate of a complex number, this one z is the normal complex number. Suppose z dashed. Okay, this is the conjugate conjugate of a complex number. If a plus ib is the number, so conjugate will be opposite, a minus ib, simple. So that is the conjugate. Okay, so you have to keep in mind that if z equal to a plus ib, then the conjugate of a plus ib is a minus ib, and that is represented by z bar. Keep all these things in mind because we are going to implement all these things over there only. Hope it is clear. Now you have heard about cube roots of unity. Cube roots of unity. What is cube root of unity? Let's do x equal to, let x equal to 1 to the power of 1/3. You have to find out the cube root of unity. Unity means unity is 1. Okay, now cube root means 1 to the power of 1/3. Actually this is, actually you can say x equal to this. Okay, now yeah, this can be represented like this, 1 to the power of 1 by 3. Okay, so this is the cube root. And now how to find out? Or cubing both sides, you can say, we get. Why cubing? Because 1 to the 1 to the power of 1/3. So into 3 if we do, so 1/3 is gone. Okay, so x cube equal to 1 to the power of 1/3 the whole cube, 3 gone. Or x cube minus 1 equal to 0, or x cube minus 1 cube equal to 0. You can write like this. Or a cube minus b cube formula क्या है? X minus 1 into x square plus x plus 1 equal to 0. A cube minus b cube is a minus b into a square plus ab plus b square. That is the formula. Okay, I have written in that form. Okay, or x minus 1 equal to 0, or x equal to 1. Okay, now one more part is that x square plus x plus 1 equal to 0. To find out the value of x. Now what is this? X square plus x plus 1. x square है ना, पावर 2 है, तो ये क्या है? 1 से पावर, हाईएस्ट पावर क्या 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको हमें क्या फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बात करते हैं. ये फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो और x का यदि वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द वैल्यू.
roots of these are the roots. X equal to minus b plus minus root d upon 2a. And what is d? D equal to b square minus 4ac. These core concepts is required over here. That's why I'm telling. Okay, now x square plus x plus 1 is there. X square. Now x square plus x plus 1 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इक्वल टू 1. एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1. Okay, I hope it is clear. Now find out d. D equal to what? B square minus 4ac equal to b square is how much? 1 square minus 4 into 1 into 1 equal to 1 minus 4 is minus 3. Now what is x? Minus b plus minus root d upon 2a, that we know, equal to minus b. Minus b is how much? Minus 1 plus minus root d on the root over minus 3 upon 2 into 1, which is equal to minus 1 plus minus root 3 into I upon 2. Hope it is clear. Okay. Therefore, the cube roots of u dt are 1 comma minus 1 plus root 3 I upon 2, और एक इसको अलग अलग कर दिया, minus 1 minus root 3 I upon 2. Hope it is clear. अब हम क्या करें, एक शीट लेते हैं. अब ये तो समझ आ गया. अब सपोज इसको मैंने ओमेगा लिख दिया, इतना बड़ा बड़ा लिख नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. आप यदि पहले वाले को ओमेगा स्क्वायर करोगे तो दूसरे वाले क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा. सिंपल लॉजिक. ठीक है ना. ओमेगा इक्वल टू मैंने क्या लिया? ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2. अब यदि ओमेगा स्क्वायर यदि हम करेंगे तो ऑब्वियसली ये आना चाहिए. देखते हैं इसको स्क्वायर करके. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 प्लस रूट प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते रूट 3 आई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कितना होता है? नीचे 2 स्क्वायर इक्वल टू 4. कैन राइट लाइक दिस. ओके. नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 3 आई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 आई इंटू 1 अपॉन 4. कहीं गलती हो तो आप बता सकते हो. रूट 3 इंटू रूट 3 हाउ मच? 3. तो 3 आई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 आई अपॉन 4 इक्वल टू आई स्क्वायर इज हाउ मच? माइनस 1. तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 आई अपॉन 4. माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2. तो माइनस 2 रूट 3 आई अपॉन 4. आप क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लो. 2 यदि कॉमन ले, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 4. 2 2 जर. अब देखो माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2, देखो तो माइनस वाई माइनस रूट 3 आई अपॉन 2. आपको समझ आ गया. तो एक ओमेगा होने से दूसरा ओमेगा स्क्वायर. आप क्या करेंगे? होप इट इज क्लियर. ओके. नाउ एक और प्रॉब्लम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके देखते हैं, विच इज इक्वल टू, एक और शीट लेते पहले. 1 प्लस ओमेगा इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2. तो एलसीएम कितने होंगे? 2 होंगे. तो 2 प्लस माइनस इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आई प्लस माइनस 1 माइनस रूट 3 आई. तो देखो रूट 3 गॉन. 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 इक्वल टू 0. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. होप इट इज क्लियर. दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी. नाउ एक और चीज, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच?
इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा क्या वैल्यू कितने -1 प्लस √3i अपॉन 2 इंटू -1 माइनस √3i अपॉन 2, ये है। सपोज -1 को ए ले लो तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितने होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3i का होल स्क्वायर अपॉन 4। -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस √3 इंटू √3 3 आई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, -1 अपॉन 4। तो -3 इंटू -1 इज 3 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इज हाउ मच, 4। 4/4 कितना होता है, 1। देयरफॉर ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1। ये सारा प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, हम सॉल्व करने में यूज होगा ये। तो ये सारा प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे, ओके। और बाकी डी मोइवर्स थ्योरम जब आएंगे, अभी आगे आने वाले हैं, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। होप आई एम क्लियर विथ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ओके। क्या दिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा होल क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखते हैं कैसे होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो और 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये तो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बात की। 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा इज हाउ मच, माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा 4 माइनस ओमेगा टू द पावर ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3 कितना होता है, ओमेगा 6 और ये 3 टाइम्स, तो क्या होगा, प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6 का लेते हैं ओमेगा क्यूब उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर। होप आई एम क्लियर। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो गया, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 0। यही प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू आर एच इज प्रूव्ड। होप आई एम क्लियर, ठीक है। So this is the way I am solving, and in this way only you will also solve, okay. Next question. If 1 omega omega square is 3 cube roots of unity so that this equal to 49, ये इक्वेशन दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 इंटू 2 माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 11, ये दिया हुआ। अब देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है ये ओमेगा, ये तो मिनिमम ही है, ओमेगा स्क्वायर मिनिमम में है, ओमेगा 10 और ओमेगा 11 का हम कुछ कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लो इनटू 2 माइनस ओमेगा क्यूब लिख दो इंटू 3 जैसे लिख सकते, 3 3 9 और 10 है ना, इंटू ओमेगा तो 10 हो गया, इंटू 2 माइनस ओमेगा क्यूब 3 3 9 और ओमेगा स्क्वायर कर दो। होप आई एम क्लियर, विच इज इक्वल टू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना, तो 1 होता है, 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 माइनस ओमेगा, ये 2 माइनस ओमेगा हो गया, और ये क्या होगा, ओमेगा क्यूब 1 क्यूब 1 ही होता है, तो 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 2 माइनस ओमेगा, यहाँ पे 2 माइनस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, हम 2 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 है, और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी भी 2 है, तो होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर एक ही साथ लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 2 2 4
माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 omega square plus omega cube is how much? 1. Omega plus omega square is how much? Minus 1. So 4 minus 2 into minus 1 plus 1 whole square. So how much? 4 plus 2 is 6 plus 1 is 7. So 7 square which is equal to 49. Calculate kar the 49 which is equal to RHS. Proved. Hope I am clear and you also understood the thing. Okay, तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये वाला भी करते हैं, इससे भी है थोड़ा सा, बस मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ. 2 माइनस ओमेगा 3 लिख दो. 3 6 18 इंटू ओमेगा, और ये वाला होगा क्या? 2 माइनस ओमेगा क्यूब 3 7 21 इंटू 2, मुझे ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर. वही देखो सेम फॉर्म, अरे 49 हो जाएगा. 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद क्वेश्चन सेम है, ये आप लोग खुद करोगे. ठीक है. ये वाला सेम इजी है, फिर भी मैं एक करके दिखाता हूँ. 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ओमेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 प्लस 1. अब ये वाला ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये तो लिख सकते हैं. 1 प्लस ओमेगा 6, उसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा क्यूब टू द पावर ऑफ होल स्क्वायर. 3 टू 6 हो रहा. 1 प्लस ओमेगा 8, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 3 टू 6 इंटू ओमेगा, 3 टू 6 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 8 हो गया. वो इट इज क्लियर. ओके. माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्यूब. 1 प्लस 1 इज 2 इंटू ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब इज हाउ मच? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा इज हाउ मच? माइनस ओमेगा स्क्वायर. वही सेम स्टाइल. 1 प्लस 1 इज 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. नो क्या होगा? 2 टू 4, 4 ही तो आ रहा. ठीक है. वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू RHS. समझ आ गया होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट. सच इजी क्वेश्चंस, 5 नंबर क्वेश्चन है ये सारे. स्कोरिंग है, वेरी स्कोरिंग. अब ये वाला क्वेश्चन, cube roots of unity so that 1 plus omega square to the power of 5 plus 1 minus omega square to the power of 5 plus 1 plus omega minus omega square to the power of 5 equal to 32. कैसे करेंगे इसको? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, तो 0 टू द पावर ऑफ 5 सीधा, प्लस 1 माइनस ओमेगा है. ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5, ऐसे लिख लो. तो ये 0 हो गया. तो क्या हो गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच? माइनस ओमेगा टू द पावर ऑफ 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा इज हाउ मच? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5. तो माइनस ओमेगा इज हाउ मच? माइनस 2 ओमेगा टू द पावर ऑफ 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 5. तो कितना होगा? 2 टू द पावर 5 इज 32, तो माइनस 32 ओमेगा 5 प्लस माइनस 2 टू द पावर ऑफ 5 माइनस 32 ओमेगा टू द पावर ऑफ 10.
विच इज इक्वल टू -32 दोनों से कॉमन ले लो तो ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 ये ले सकते हैं विच इज इक्वल टू -32 ओमेगा 5 को ले सकते ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 10 को ओमेगा क्यूब क्या क्यूब इंटू ओमेगा ऐसे लिख सकते 3 9 प्लस 1 10 ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना 1 इक्वल टू -32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है -1 तो -32 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 32 विच इज इक्वल टू RHS शायद मैंने ठीक किया देखो 32 देखो ठीक है ऐसे करके आप लोग सारे ऐसे करके मैथ सॉल्व करेंगे ठीक है और आप लोग यदि ये लेक्चर पसंद आ रहे तो गिव इट अ लाइक और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो आप लोग कोई कमेंट नहीं करते ठीक है कमेंट करोगे तो इन द फ्यूचर लेक्चर्स आल्सो इन द फ्यूचर semesters also our team members will get a boost and they can post some useful videos for you they can come up with live lectures for you okay तो आप लोगों को कमेंट और पोस्ट कमेंट शेयर और लाइक दोनों तीनों करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि मोस्ट जितने लोगों को ये फायदा मिलेगा उतना हमें अच्छा लगेगा अंडरस्टूड तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ये देखो इफ ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड दिस ठीक है लेफ्ट इस लिखो लेफ्ट हैंड साइड से नहीं कुछ प्रूफ नहीं दिया सॉल्व करना है इसको तो विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 तो 2 - 1 टू द पावर ऑफ 6 प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना था -1 to the power of 6 2 minus 1 1 to the power of 6 plus 3 minus 1 is 2 2 to the power of 6 2 to the power of 5 64 plus 1 plus 64 equal to 65 यही आंसर such easy question अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा ये भी सिंपल है देखते हैं फाइंड दिस ये दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा क्या होता है -ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पे प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर ऐसे नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे देखते हैं डिलीट करो इसको क्या करेंगे 1 प्लस 2 कॉमन ले लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 6 ऐसे लिख सकते ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हाउ मच -1 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना था ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 प्लस 2 इंटू -1 होल टू द पावर ऑफ 6 2 to the 64 omega to the power of 12 plus 1 minus 2 is -1 -1 to the power of 6 is 1 तो 64 ओमेगा क्यूब टू द पावर ऑफ क्या लिख सकते 4 लिख सकते प्लस 1 ओमेगा क्यूब इज 1 तो 64 प्लस 1 कितना होता 65 ये आंसर है आप लोग देख रहे हो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है ठीक है और कुछ यदि एरर कुछ भी हो तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में वो भी डाल सकते हो सर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया बहुत सारे बच्चों ने निकाले भी मेरे कुछ गलतियां ठीक है गलतियां हो ही सकती है बिकॉज दिस आर ऑल लाइव लेक्चर्स ये देखो 5 ये वाला क्वेश्चन वही सेम स्टाइल का है 2 प्लस ओमेगा 22 करते 2 प्लस ओमेगा 3 इंटू ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं और ये वाला क्या लिख सकते हैं 2 प्लस ओमेगा 3 8 24 इंटू 2 तो 8 24 प्लस 2 इज 26 इक्वल टू क्या हो गया इक्वल टू मतलब इसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट कर रहा हूँ इक्वल टू 2 प्लस ओमेगा और 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब वही सेम 2 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर वही होल स्क्वायर वगैरह करके जैसे मैंने किया था वैसे ही करो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से दिया हुआ है अब एक क्वेश्चन आया इफ a माइनस आई बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन a minus ib into x plus iy the question is this so how to solve it any idea this is a very important question कैसे करेंगे इसको आप लोग बता सकते हैं देखो
इसको हम, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई दिया हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई ये दिए हुए। तो हम इसको एक बार करके देखते हैं। सॉल्यूशन z इक्वल टू ए प्लस आई बी ले लो, तो z कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस आई बी, और z इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इसका माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक चीज देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कुछ तो रिलेशनशिप है बॉस, कुछ तो रिलेशनशिप है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इसको z ले लो, ये तो z है। अच्छा ये z कॉम्प्लीमेंट में लिया हो ना, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, सपोज मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, ए माइनस आई बी क्या है, नाउ ए माइनस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई, ये दिया हुआ। अब ए माइनस आई बी को मैंने क्या लिया था, जेड कॉम्प्लीमेंट, जेड कॉम्प्लीमेंट लिख दो यहाँ पे इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट। अब क्या लिखेंगे, जेड कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट गॉन, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जेड आई, ये लिख सकते हैं। और जेड इक्वल टू क्या है, और एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जेड का वैल्यू कितना है, ए प्लस जेड का वैल्यू ए प्लस आई बी ऊपर से, तो ए प्लस आई बी लिख सकते हैं इंटू वाई, वी कैन राइट लाइक दिस, और एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई करो ए आई प्लस आई स्क्वायर बी, आई को मल्टीप्लाई कर दिए विच इज इक्वल टू, और एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 मतलब क्या हुआ, माइनस बी प्लस ए आई, ऐसे लिख सकते। अब इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts we get, क्या लिख सकते, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी, और आई वाई इक्वल टू कितना होगा, ए आई, आई आई कौन, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, ए। तो दो आंसर हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी, वाई इक्वल टू ए। ठीक है, होप आई एम क्लियर। ओके, तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ऐसे ही मैंने सॉल्व किए और आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालिए, वे आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x इक्वल टू ए प्लस बी, वाई इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड z इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ, सो दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे करेंगे, करते लेफ्ट हैंड साइड, एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल टू ए प्लस बी लिखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यूब, क्योंकि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं, ओमेगा जहां है उधर ही मल्टीप्लाई करो, ए ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ऐसे कुछ है, बी इंटू बी स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए ओमेगा क्यूब इज 1, तो ए प्लस ए बी, ये दोनों से ए बी कॉमन ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1, तो बी स्क्वायर सिर्फ लिखेंगे, इतना तो क्लियर है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, कहीं तो गलती किया है, ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये ए स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को क्या लिख सकता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर
which is equal to a plus b into a square plus ab into ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर. ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1. तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है. ठीक है, देखो द वे आई एम डूइंग मैथ्स इज एन आर्ट. द वे आई एम डूइंग ना, यू पीपल हैव टू डू लाइक दैट ओनली. ठीक है, तो होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग लाइव में पूछो, आई एम गोइंग टू आंसर दैट. और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखो कितने बच्चे ज्वाइन किया, 4-5 ही बच्चे. आज देम टू ज्वाइन. हाँ, एक ये क्वेश्चन आ गया. इफ 1 minus I upon 1 plus I to the power of 100 equal to a plus IB, so that a equal to 1 and b equal to 0. देखते हैं कैसे करेंगे इसको, रैशनलाइज करेंगे नीचे नीचे वाला पार्ट को. 1 minus I upon 1 plus I, नीचे वाला पार्ट को रैशनलाइज करेंगे इंटू 1 minus I upon 1 minus I इक्वल टू 1 minus I का होल स्क्वायर अपॉन a plus b into a minus b, a square minus b square, 1 square minus I square, which is equal to 1 plus I square, a minus b का होल स्क्वायर, a square plus b square minus 2 into 1 into I upon 1 plus 1. I square is -1, तो 1 plus 1 is 2. तो 1 I square is how much? -1 minus 2I upon 2. 1 gone, तो इक्वल टू क्या हो गया? -2I upon 2. 2 gone, which is equal to -I. ये तो समझ आ गया. अब 1 minus I upon 1 plus I को क्या लिख सकते हैं? Therefore 1 minus I upon 1 plus I क्या लिख सकते हैं? -I लिख सकते हैं. ठीक है, therefore 1 minus I into 1 plus I to the power of 100 equal to -I to the power of 100. माइनस के ऊपर यदि 100 है तो उसका मतलब क्या है? इवन है, तो क्या होगा? ये इवन ही होगा. तो I to the power of 100 लिख सकते हैं इक्वल टू I square to the power of क्या लिख सकते हैं? 50. I square is how much? -1 to the power of 50 कितना होगा? 1 ही होगा. अब a प्लस IB का फॉर्म में, a प्लस IB का फॉर्म में. चलो एक और शीट ले लेते हैं. क्या है? therefore a प्लस IB का फॉर्म में यदि 1 को लिखें इन a प्लस IB फॉर्म, तो क्या होगा? 1 प्लस I इंटू 0. तो ये क्या है? a का वैल्यू कितना है? therefore a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0. यही तो बोल रहा था आंसर. इन a प्लस IB फॉर्म मैंने क्या किया? 1 को लिखा, तो क्या होगा? 1 प्लस I इंटू 0, क्योंकि I था ही नहीं, तो क्या हो गया? a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया. होप आई एम क्लियर. अब ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस आई वाई टू द पावर ऑफ 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी, प्रूव दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? टू द पावर ऑफ 1/3 है ना, यहाँ पे दिया वो 1/3 है, तो हम क्यूबिंग कर देंगे सीधा. देखते हैं सॉल्यूशन. x प्लस आई वाई टू द पावर ऑफ 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी, क्यूबिंग बोथ साइड्स, we get तो x प्लस आई वाई 1/3 इंटू 3 इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब. ये हो गया. और x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी टू द पावर ऑफ 3. अब क्या करेंगे? इक्वल टू एक और x प्लस आई वाई, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर इंटू आई बी प्लस थ्राइस ए इंटू आई बी का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ है. और x प्लस आई वाई इक्वल टू ए क्यूब प्लस आई क्यूब इज हाउ मच? आई स्क्वायर इंटू वाई इंटू बी क्यूब
प्लस 3a² IB प्लस थ्राइस a इंटू I² B² और x प्लस IY a³ I करेगा how much -1 माइनस IB³ प्लस थ्राइस a² IB माइनस I² -1 माइनस 3a B², ऐसे कुछ है। तो हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी एक साथ कर लेते हैं। x प्लस IY इक्वल टू a³ माइनस 3ab² प्लस 3a² B माइनस B³ इंटू I। तो ऐसे है। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, equating and real and imaginary parts। x इक्वल टू क्या हो गया, a³ माइनस थ्राइस ab² और y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया 3a² b माइनस b³। अब क्या करेंगे, आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये वाला x बाई ए प्लस वाई बाई बी। एक्स और y का वैल्यू तो निकल गया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड x बाई ए प्लस वाई बाई बी। नाउ x इज हाउ मच, a³ माइनस थ्राइस ab² बाई ए प्लस थ्राइस a² b माइनस b³ बाई बी। अब a कॉमन ले लो दोनों से, तो क्या हो गया a² माइनस 3b² अपॉन ए प्लस b कॉमन ले लो, तो क्या होगा 3a² माइनस b² आई थिंक, हाँ b² अपॉन b। ए गॉन, बी गॉन, इक्वल टू हाउ मच a² माइनस 3b² प्लस थ्राइस a² माइनस b² इक्वल टू a² प्लस 3a² के साथ 4a² माइनस 4b² इक्वल टू 4 इंटू a² माइनस b² विच इज इक्वल टू RHS। यही तो पूछा था। तो देखो लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इजी। ये देखो सेम सिमिलर क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, वो तो मैंने किया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ, इफ z माइनस 2y इक्वल टू z प्लस 2y सो दैट इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू 0। ये इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ, तो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, we know that लिखो z इक्वल टू a प्लस IB और a प्लस IB माइनस 2y which is equal to z equal to a plus IB प्लस 2y इक्वल टू लिख सकते हैं, और a प्लस b माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 इंटू वाई। अब इसका हम निकालेगा मॉड्यूलस, तो क्या होगा रूट ओवर a² प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर a² प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा a² प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर b माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर। वी कैन राइट लाइक दिस, ओके a² गॉन और b माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू b प्लस 2। तो क्या होगा b माइनस 2 इक्वल टू b प्लस 2
इमेजिनरी ऑफ जेड। नाउ क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखने दो। इमेजिनरी ऑफ जेड, इमेजिनरी ऑफ जेड इज हाउ मच, imaginary of z is this b minus 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, और बी का तो वैल्यू आएगा ही नहीं यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। ऐसे से कॉट हो गया तो क्या हो गया, 2 + 2 = 4, 4 = 0, ये तो नॉट इक्वल, ये तो हो नहीं सकता। तो हम व्हाट यू कैन से, जब ये नॉट इक्वल है मतलब क्या, ये रियल में तो नहीं हो सकता ना, देयरफॉर हम b = 0 कर सकते हैं, b = 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इमेजिनरी ऑफ z = 0। ठीक है, होप इट इज क्लियर। 4 नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, b मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या, इमेजिनरी ऑफ z = 0। इमेजिनरी में क्या, b - 2 है इंटू y, तो b का वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिकली सारे ही 0 हो जाएंगे, या b का वैल्यू, एक मिनट देखने दो। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, 4 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b इक्वल टू 0, देयरफॉर इमेजिनरी ऑफ z = 0, सिंपल। ठीक है, होप आई एम क्लियर। और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ z² = z, वेयर z बार इज a conjugate of z। तो z इक्वल टू क्या है, a + ib। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया, z² = z, तो z इक्वल टू कितना है, a + ib का होल स्क्वायर इक्वल टू a + ib, ये दिया हुआ, और a + ib इक्वल टू, सॉरी कौन से, इक्वल टू कितना, और a + ib इक्वल टू 1, और a + ib इक्वल टू 1 + 0 × i। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1, और b इक्वल टू 0। दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ z² = z। तो दिस इज द वे आई हैव टू डू। अब डी-मोइवर्स थ्योरम आ गया टॉपिक। तो डी-मोइवर्स थ्योरम कैसे करेंगे, एक शीट ले लेते हैं, डी-मोइवर्स थ्योरम, व्हाट डी-मोइवर्स थ्योरम इज सेइंग। लेकिन उसके पहले एक दो और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एक सेकेंड, एक आधे क्वेश्चन जो आने वाले प्रोबेबल, और भी एक दो क्वेश्चंस है दैट वी शुड सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, if x equal to -2 - √3i, find the value of, हॉट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x⁴ + 5x³ + 7x² - x + 41, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, x इक्वल टू दिस दिया हो तो x + 2 इक्वल टू -√3i, ये तो लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -√3i का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और x + 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, x² a² + b² मैंने 4 + 2 × a × b इक्वल टू, माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3i² और x² + 4 + 4x इक्वल टू -3, i² इक्वल टू -1 होता है, और x² + 4x और 4 + 3 कितना, 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको ये पूरा होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इससे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड क्या है 2x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 41। तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, तो 2x4 हो गया। डिवाइड तो करने आता ही आप लोग को, मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। 4 इंटू 2 इज 8, 8x क्यूब प्लस 7 टू जो 14x स्क्वायर। अब माइनस 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 करो तो माइनस 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 41 माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x। कुछ गलती किया मैंने, लगा ये क्यूब है, सॉरी। तो माइनस 3 इंटू क्या करेंगे x करेंगे, तो माइनस 3x क्यूब 4 3 जा 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 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 ये हो गया। तो माइनस 7 प्लस 12 इज कितना होता है 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 41। अब 5x स्क्वायर है तो 5 यदि 5 से मल्टीप्लाई करें 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5 प्लस 4 20 5 से 20x प्लस 5 से 35। तो कितना हो गया 6। तो हम लोग एक ये क्या है, ये जो पार्ट है, एक दो बातें मैं आपको बताऊं अभी। ये जो पार्ट है ये क्या है, ये डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइड, ये क्या है डिवाइड करने के लिए एक दिस वन इज कोशेंट, ये रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये डिविडेंड, ये डिविडेंड, और ये क्या है डिवाइजर। और फॉर्मूला एक है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड इक्वल टू कितना है, यही वाला है, डिविडेंड इक्वल टू 2x4 2x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 41 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इंटू कोशेंट, कोशेंट इज हाउ मच 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज हाउ मच 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ पे दिख रहा। तो क्या करेंगे 0 इंटू दिस 2x स्क्वायर माइनस 3x, एक सेकेंड, माइनस 3x प्लस 5 प्लस 6, तो 0 इंटू दिस 0, तो 6 आंसर। हो पाए क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है, इस तरह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डीमोइवर्स में चलते हैं। एक मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा तो आई डिड इट, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे डीमोइवर्स थ्योरम। ये क्या बोलता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर ऑफ n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये फॉर्मूला है, इसी को यूज करके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन है उसको पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म मतलब ये पोलर फॉर्म है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, इट विल बी इजी।
1+√3i टू द पावर ऑफ क्यूब। इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे तो cos थीटा sin थीटा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखें? लेट 1+√3i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये क्या हो रहा है एक्चुअली? हो क्या रहा है? ये कन्वर्टिंग, ये जो है ये स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है? कन्वर्टिंग टू पोलर फॉर्म, कन्वर्टिंग टू पोलर फॉर्म। और क्या करेंगे? 1+√3i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अब क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या होगा? 1 इक्वल टू r cos थीटा और यहाँ पे क्या होगा? √3i इक्वल टू i r sin थीटा। अब i गॉन और 1 इक्वल टू r cos थीटा, ये इक्वेशन 1 दे दो, और √3 इक्वल टू r sin थीटा, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब 1 स्क्वायर, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, वी गेट, तो क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और 1+3 इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और r स्क्वायर इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू कितना हो गया? 2, r इक्वल टू 2 हो गया। एक शीट ले लेते। अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। आप कोई भी एक इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कहीं भी यदि r का वैल्यू 2 पुट कर दो, थीटा का वैल्यू निकल जाएंगे, और थीटा का वैल्यू सेम ही आएंगे। दो कोई भी दो इक्वेशन में कोई भी एक भी इक्वेशन में r का वैल्यू डालो आप, थीटा का वैल्यू सेम ही आएंगे। तो क्या लिखेंगे? कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, पुटिंग r इक्वल टू 2 इन 1, फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, तो क्या होगा? 1 इक्वल टू 2 sin थीटा और sin थीटा इक्वल टू हाफ sin 30 का वैल्यू होता है sin 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब r का वैल्यू निकल गया, थीटा का वैल्यू निकल गया। अब करने क्या है? एक इक्वेशन में पुट करते हैं, पहला वाला इक्वेशन 1+√3i, देयरफॉर r का वैल्यू कितने हैं? r का वैल्यू 2 इंटू cos थीटा cos 30 प्लस i sin 30, ये एक फॉर्म है। अब 1+√3i का क्या है? टू द पावर ऑफ 3 है ना, क्यूबिंग कर रहे हैं एक्चुअली, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? 1+√3i टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा? 2 क्यूब इंटू cos 30 प्लस i sin 30 टू द पावर ऑफ 3। 2 क्यूब इज हाउ मच? 8 इंटू cos, अब क्या करेंगे? cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर ऑफ n, क्या होगा? cos n थीटा cos 3 इंटू 30 प्लस i sin 3 इंटू 30 इक्वल टू 8 इंटू cos 90 प्लस i sin 90। sin 90 इज हाउ मच? 1 और cos 90 इज 0 आई थिंक, हाँ ठीक है, cos 90 इज 0, तो 8 इंटू 0 प्लस i इंटू 1, sin 90 का वैल्यू 1 है, तो क्या होगा? 8i इज द आंसर। समझ गए? ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे मैंने करा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट किए, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकाल लिए, इक्वेट कर लिया। उसके बाद क्या किया? आर का वैल्यू निकाले, आर का वैल्यू से हम क्या किए? एंगल निकाले, थीटा इक्वल टू 30। उसके बाद 1+√3i को फॉर्म में लिख दिया मैंने। उसके बाद टू द पावर ऑफ 3 था तो क्यूबिंग कर दिया मैंने। जो टू द पावर ऑफ 8 होता तो क्यूबिंग नहीं लिखते, तो फिर 8 8 दोनों तरफ लगा देते पावर में और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 3 लगा किया मैंने। दिस इज द वे टू डू। अब देखो एक क्वेश्चन आ गया 1+i टू द पावर ऑफ 8। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, वही सेम स्टाइल है।
let 1 plus I equal to r cos theta plus I sin theta, or 1 plus I equal to r cos theta plus I sin थीटा, आर भी लगेंगे यहाँ पे। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो क्या होगा, 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा और यहाँ पे आई इक्वल टू आई आर साइन थीटा, आई गॉन, और क्या हो गया 1 इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे ही कुछ हुआ। अब ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। अब क्या करेंगे, वही सेम स्टाइल, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वी गेट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 plus 1 is how much, 2, तो 2 equal to r square cos square theta plus sin square theta, r square कॉमन ले लिए, तो इसका वैल्यू 1 होता, तो r square इक्वल टू 2 और r इक्वल टू कितना हो गया, √2। आप पुटिंग r इक्वल टू √2 कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मैंने इक्वेशन 1 में डाल रहे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इन 1 यदि करते हैं तो 1 इक्वल टू क्या होगा, √2 cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू 1 बाई √2 इक्वल टू cos कितना होगा, cos 45 आई थिंक, cos 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री, r इक्वल टू √2, ये दोनों निकल गए। अब वो वैल्यू पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस आई ये वाला इक्वेशन में डालेंगे, ये वाला इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आई इक्वल टू √2 cos 45 प्लस आई साइन 45। अब 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ 8 है इक्वल टू √2 इंटू cos 45 प्लस आई साइन 45 होल टू द पावर ऑफ 8 इक्वल टू कैसे, √2 को क्या लिखे, 2 टू द पावर ऑफ हाफ इंटू 8, और क्या होगा cos 45 प्लस आई साइन 45 टू द पावर ऑफ 8। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 2 टू द पावर ऑफ 4 कितना होता है, 16 इंटू cos 8 इंटू 45 प्लस आई साइन 8 इंटू 45, 45 इंटू 8 कितना 360, तो 16 cos 360 प्लस आई साइन 360, cos 360 कितना होता है 1, तो 16 1 प्लस या साइन 360 जीरो होता है, तो जीरो इक्वल कितना हो गया 16, यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद ऐसे एक क्वेश्चन है आई प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसके बाद एक क्वेश्चन है √3 प्लस वही सेम ही है, तो आई प्लस √3 का होल स्क्वायर यू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, ये वाला आप लोग खुद ही करोगे, वही आई प्लस √3 इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसके बाद वही सेम स्टाइल सेम प्रोसीजर आप लोग फॉलो करोगे एंड यू कैन गेट द आंसर। होप ये समझ में आया ये लेक्चर, ठीक है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन आएंगे ही, मस्ट है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आप लोग को करना है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस करो, एक क्वेश्चन लेते हैं। if x plus iy equal to root over a plus ib upon c plus id, so that x square plus y square equal to root over a square plus b square upon c square plus d square, इस तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, x प्लस आई वाई इक्वल टू कितने, रूट ओवर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, आप इसका कॉन्जुगेट चेंज देंगे x माइनस आई वाई, तो क्या होगा रूट ओवर a माइनस आई बी
अपॉन सी माइनस आई डी। ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये कॉन्जुगेट है तो 1 इंटू 2 कर दो, तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके, इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कैलकुलेटेड, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन में 5 नंबर में आएगा, देखो कितने स्टेप्स है, 2-3 स्टेप्स है और क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आई विल बी कमिंग विथ वन मोर लेक्चर, 2 more lectures. One is for vector in 3D and the other is for miscellaneous that covers the equations and part. Okay, तो आप लोग को ये करना है, और आप लोग को यदि ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है, तो फिर गिव इट अ लाइक एंड कमेंट मस्ट है, ठीक है, फॉर द आवर टीम मेंबर्स। तो फिर आगे सेमेस्टर में भी आप लोग का टॉपिक्स आएंगे, तो वी कैन, ठीक है, फिर और भी वीडियोस बनेंगे आप लोग के हेल्प करने के लिए। और आप लोग को कहीं भी ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग यदि ये इसी चैनल से प्रॉपरली करोगे, दिस इज योर चैनल ओनली, तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। होप this lecture helps you. Okay, thanks a lot. Bye.